Guys, thank you for joining us in next later part of this session, second part of this session. Second topic is internal analysis. Internal analysis is something which is really common in every organization. हर कंपनीज इंटरनल एनालिसिस करती है मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसे एनुअली करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसे बाई एनुअली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं. इंटरनल एनालिसिस क्या है और इसकी क्या अहमियत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आज हम इस टॉपिक में या आज की इस वीडियो में देखेंगे. मुझे बताएं आप लोगों का क्या प्रोस्पेक्टिव है रिगार्डिंग इंटरनल एनालिसिस. आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इंटरनल एनालिसिस? हमने अपनी लास्ट क्लास में सॉर्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि सॉर्ट एनालिसिस क्या होती है, क्यों जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉर्ट एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस के लिए कंपनीज ने कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया होता है और उसके लिए कंपनीज चाहती हैं कि या तो उनका इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ये काम करे या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो नुमाइंदा है वो करे. इंटरनल एनालिसिस के लिए सॉर्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है. सॉर्ट एनालिसिस इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और हमने इसको डिस्कस भी किया. आइए एक इंटरैक्टिव सी वीडियो देखते हैं सॉर्ट एनालिसिस पे, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सॉर्ट एनालिसिस. जो मेन चीज है वो आपको नोट करनी है इसमें. थैंक यू. ओवर टू द वीडियो. Company and coffee house chain. It was founded in Seattle. Okay, great. So in this lesson, our goal would be to apply the SWOT framework in practice. Shouldn't be that difficult, right? The company we'll examine is Starbucks, the well-known U.S. coffee company and coffee house chain. It was founded in Seattle in 1971 and operates in several countries around the world. Let's start with the company's strengths. First, almost everyone knows its brand, right? So it definitely has a strong brand recognition. Starbucks has been proclaimed the most recognized coffee brand in the world, quite an advantage regarding other companies in the industry. The firm's brand is one offering of a differentiated product to customers, which is coherent with its strategy and pricing. Clients have expressed they love the atmosphere in Starbucks coffee houses. They can use free Wi-Fi and enjoy the coffee drinking experience to the fullest. The company owns thousands of outlets around the world, and its clients can find it even when traveling overseas. That's a strong advantage, as it ensures loyal clients can remain such even overseas. And finally, Starbucks supply chain management ensures the quality of coffee served to customers is excellent. The company chooses its suppliers carefully, which improves the quality of its products and ensures clients receive a super coffee experience. This is another choice in sync with its differentiation strategy. Okay, very good. Let's take off our rosy glasses and consider some of the firm's weaknesses. One could argue Starbucks offers the same product in all countries where it operates. It does not customize it according to the different tastes of people in different geographies. For some customers, this is an issue, and they prefer competitor products tailored to their specific geographical preferences. In addition, Starbucks has a premium price policy, which is not in line with most customers' expectations. Not all countries have enough middle and high-income class individuals who can afford to pay extra for their coffee. Weakness number 3 would be the high employee turnover that the chain's coffee shops have. It is difficult to serve coffee as a premium product when the company's baristas have been on the job for only a couple of weeks. In terms of opportunities, we can say the following. Starbucks can access new countries easily. It simply has to apply its existing business model in these new geographies. Emerging markets can be a great source of growth for the company. Starbucks has also entered agreements within the entertainment industry and partnered with movie-producing companies. That can be a great opportunity for the firm, too.
One of the biggest threats for Starbucks is the saturation of the American market, which is where most of its outlets are located. Consumers are increasingly invested in healthier lifestyle, and some substitute products are better positioned to capture the attention of the health-conscious clientele. Okay, we'll stop here. This is what a SWOT analysis looks like in practice. The depth of the observations included in the analysis depends on the information we have about the company. I'm sure an industry practitioner would be capable to prepare a much deeper analysis. However, the important point is you now know how to perform a SWOT analysis on your own, and you can distinguish the important questions from the rest when it comes to analyzing a company. SWOT analysis is a great tool that allows us to visualize and concentrate on some of the most important topics when analyzing a company. This will do for now. Thanks for watching. So guys, that was internal analysis of Starbucks कॉफी. हम सब जानते हैं दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है कॉफी के हवाले से. पर्पस ऑफ इंटरनल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो an organization's future success depend upon its own internal conditions as well as external conditions. Managers need to identify strength of the company, can rely on the other in order to compete. ये बिल्कुल सही बात है कि हर कंपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस पे काम कर रही होती है कि उसे क्या क्या चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस से सामना करने के लिए कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंटरनल एनालिसिस के जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रेंथ और वीकनेस है. यानी सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को इवैल्यूएट करना है, कॉम्पिटिटिव एज हासिल करना है. कॉम्पिटिटिव एज का मतलब मैं हमेशा समझाता हूं वो चीज जो आपके पास है और आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है. रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज. कॉम्पिटेंसी मतलब अहलियत, उस इंडस्ट्री में बी द बेस्ट, लीडर होने की अहलियत आप में मौजूद हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हो. वैल्यू चेन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कि सिर्फ एक बार कोई अच्छी चीज अपनी कॉम्पिटिटर से आगे निकल के नहीं करनी, हमेशा मार्केट लीडर रहना है. जो भी इंडस्ट्री में नई चीज आएगी आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही आए. मुख्तलिफ इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि हम अगर बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने यही जो है वो अर्ली 2000 में ग्रो किया. मल्टीपल टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्लेयर्स आए. पहले सिर्फ पीटीसीएल था, फिर जैज आया मोबाइल में, फिर यूफोन आया, फिर टेलीनॉर, फिर उसके बाद पाकटेल था, इंस्टाफोन था. दे राइड ऑफ फ्रॉम द मार्केट. फिर हमारे पास जोंग आया. वारिद was one of the big company, but अब वो is a part of जैज हो गई है. लेकिन इंडस्ट्री ऑल टुगेदर मूव हो रही थी, बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रही थी. इंटरनेट सर्विसेज आई और आज टेलीकॉम इंडस्ट्री आर मोर रिलाई ऑन देयर इंटरनेट सर्विसेज they are providing. Those companies who are providing a good internet services, they have a good market share. And those companies who doesn't have the internet services good and competitively don't have much market share. उसकी मिसाल जो है वो ऐसे ही है कि पहले लोग फोन करने के लिए इंटरनेट सर्विस लेते थे, मोबाइल सर्विस लेते थे. आप इंटरनेट यूज करने के लिए मोबाइल सर्विस या टेलीकॉम सर्विसेज को अवेल करते हैं. क्या ऐसा है? यस सर, ऐसा है. बिल्कुल. हम पहले फोन करने के लिए ही टेलीकॉम सर्विसेज करते थे कि अपने रिश्तेदारों को, अपने अहलो अयाल को, या एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए ही मोबाइल सर्विसेज ली जाती थी. बट अब इंटरनेट यूज करने के लिए मोबाइल सर्विस ली जाती है. बिकॉज मोबाइल सर्विस
is becoming a platform to provide internet services. What is an internal analysis? Internal analysis की अगर definition पूछें तो identifies and evaluate resources, capabilities and core competency. क्या आपकी कंपनी में क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं आपकी कंपनी के पास, कैपेबिलिटीज हैं और कोर कॉम्पिटेंसी है जिसके जरिए आप उसको मजीद बेहतर बना सकते हो. लुक एट द ऑर्गेनाइजेशंस. आप क्या देखते हैं इंटरनल एनालिसिस करते हैं? अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि यूनिलीवर का इंटरनल एनालिसिस करें तो आपने क्या क्या चीजें देखनी है? आपने सबसे पहले देखना है करंट विजन, उसका अभी विजन क्या है, मिशन क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्ट्रेटजीज क्या हैं. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ये तमाम चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं रखती. दे पब्लिकली provide these information on their internet services, on their social media accounts, on their websites, ताकि उनके लोगों को पता चले कि उनकी सोच या उनकी जो स्ट्रैटेजी है या उनकी वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से. आप अगर किसी कंपनी की वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर आपको उसका करंट विजन मिल जाएगा, उसका मिशन भी मिल जाएगा. मिशन मुख्तलिफ किस्म की चीजों से जो है वो दिया जा रहा होता है. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी. तो ये आज के 2 टॉपिक थे. अगर कोई सवाल है तो यू मे आस्क. कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप. सर वैल्यू चेन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा. बिल्कुल बता देता हूँ. एक पिक्चर के जरिए मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ कि व्हाट इज वैल्यू चेन, फिर मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ. यस सर. वैल्यू चेन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. मैं इसी हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा भी है. हम दिखा देता हूँ. कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? यस सर. ओके. यस, देयर यू गो. वैल्यू चेन का मतलब यह है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ कोर डिपार्टमेंट्स जो है आपने आइडेंटिफाई करने हैं और वहां उन डिपार्टमेंट के लोगों को डेवलप करना है. ठीक है. जो अब सवाल ये आता है कौन से डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट या कोई खास डिपार्टमेंट? तो उसका जवाब ये है वो तमाम डिपार्टमेंट जो कि आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो. नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स, because human resource are those people who hire people. If they don't hire competitive people, you will not having a good workforce. So आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एम्पावर करना है कि वो अपनी बेहतरी के फैसले खुद लें, वैल्यू ऐड करें. या उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को हायर करना और जो काम ना करे उसको कंपनी से बाहर निकाल देना, लोगों की सैलरीज ट्रांसफर हो जाएं. ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का काम नहीं है. लोगों को आने के बाद उनकी ग्रूमिंग, उनकी मेंटोरिंग, उनकी ट्रेनिंग, ये सारी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स की है. फॉर एग्जाम्पल, हम सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और हमारी कंपनी जो है वो गवादर में अपना प्लांट लगा रही है और वहां पर लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप यहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो लोकल्स को आप जो है वो जॉब देंगे. अब मुझे एक बात बताएं कि वहाँ के लोकल्स, जहाँ पे ऑब्वियसली और एजुकेशन का इशू है, तो लोकल्स को आप के साथ आप कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स किस तरह डेवलप कर सकते हैं, मुझे बताएं. कोई रास्ता है? सर उनकी ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं सर.
यस, वेरी ट्रू। दो तरीकाकार हैं। एक तो ये कि जो वहां पर जो लोग हैं आप उनमें से सॉर्ट आउट करें कि कुछ ग्रेजुएट्स आपको मिल जाएं, यूनिवर्सिटीज जाएं, आसपास की लोकेलिटीज में जाएं, लोगों को पूछें, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जिरगा सिस्टम है, जो भी वहाँ पे लोकल वैल्यूज हैं, मस्जिद सिस्टम है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बताएं कि हमारी कंपनी यहाँ पर प्लांट लगा रही है, हमें मजदूरों की जरूरत है, हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत है, हमें कटिंग के वाले लिए, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जाएं। उसके बाद आप उनकी मेंटोरिंग के लिए, उनको अपने स्किल सिखाने के लिए एक अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे टेक्निकल पर्सन्स को हायर करें और वहां पे उनको ट्रेन करें। क्योंकि अगर आपने दूसरी जगह से लोगों को बुला के वहां बिठा दिया तो वो नाराज होंगे, कोई भी कम्युनिटी पसंद नहीं करेगी। ठीक है, फिर उस एरिया में टेक्नोलॉजी लेकर आए, आपके काम से आसपास की कम्युनिटी को फायदा हो। ठीक है, आपने देखा होगा अब के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां वो खुलती हैं, आसपास हॉस्पिटल बनाती हैं और स्कूल बनाती हैं, पानी पे काम कर रही हो, जो भी वहां की नीड है लोकल कम्युनिटी की वो उनको देती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी लेकर आए वहां पर। फिर टेक्नोलॉजी लाने के लिए मेन चीज है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मींस सप्लाई चेन, खरीदारी, चीजों को सही खरीदें। मैं वही वाली बात कहूंगा वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन की, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पे काम करें, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। इन सब लोगों की मिलाकर एक टीम बनाएं जिसको वैल्यू चेन करें, यानी हर बंदे के ऊपर ये आप एम्फेसाइज करें कि यार अनीस, हमने अगर आपको रखा है तो आपने 3 बंदे ट्रेन करने हैं, लेकिन वो 3 बंदे ऐसे ट्रेन करें आप कि आगे वो जाएं और गवादर में जाके 30 बंदों को ट्रेन कर सके। ठीक है, अगर लियाज साहब किसी टेक्नोलॉजी में माहिर हैं तो हम कहें लियाज साहब आपको और कोई काम नहीं करना अगले 6 महीने, आपने ये जो हाईटेक मशीनरीज हमने इंपोर्ट की ना, इससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके देनी है। बिकॉज होता पता है कि हमारे यहाँ मशीनरी लोग खरीद लेते हैं करोड़ों रुपए की, लेकिन उसको ट्रेन करने के लिए इंजीनियर्स को कुछ हजार रुपए नहीं देते। जो उनके पास मैनुअल मशीन ऑपरेटर होते हैं उनसे ही ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ट्रेनिंग में इतने सारे हजार पैसे हैं वो तो पता ही नहीं चलते। हमारे यहाँ उन चीजों में पैसे लगाए जाते हैं जो नजर आए। 1 करोड़ रुपए की मशीन नजर आ रही है, खरीद ली, लेकिन 1,000 रुपए की ट्रेनिंग है जो नजर नहीं आ रही, जिसके जरिए उसकी प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है आपने, वो आप नहीं खरीद रहे, वो आप पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। अब उससे होता क्या है कि एक मशीन जो कि 1,000 गुड्स, 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है, क्योंकि उसे कॉम्पिटेंट बंदा नहीं चला रहा, वो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 700 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। और उसका नुकसान क्या होता है कि कंपनी ने वो मशीन लाई इस वजह से थी टू एड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इन द वैल्यू, इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो चीज ऐड नहीं हो पाती, डिमांड सप्लाई का गैप आ जाता है। बिकॉज मार्केट की नीड तो 1,000 प्रोडक्ट की है ना, उसको आप 700 प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, वेंटिलेटर्स की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान वेंटिलेटर हमेशा इंपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन जब कोरोना के मामला हुए पूरी दुनिया ने वेंटिलेटर को बेचना, उन्होंने कहा कि सोना ले लो भाई, जवेरात ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस नहीं दे सकते हम आपको अपने मुल्क की। हर मुल्क ने अपनी मुल्क में मौजूद मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स का कानून रातों रात चेंज किया और उनको रेस्ट्रिक्ट किया, जो गलत भी नहीं है। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी पाकिस्तान में कोई चीज या कराची में कोई चीज बना रही है तो एथिकली और मॉरली उसे पहले कराची के लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, या पाकिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, या सिंध के लोगों को करना चाहिए। अगर वो इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर दी चीज, तो यार वो हमारी इकोनॉमी से चली गई ना। फिर पाकिस्तान में एनसीओसी और कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, नेस्टैक और दूसरी कंपनीज ने मिलकर पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स बनाए, जो काम 30-40 साल से नहीं हो रहा था, जो शायद अगले 20 साल भी नहीं होता, वो 1 साल में ही हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेन ऐड की गई, उस चीज को समझा गया। दैट वाज वैल्यू चेन। थैंक यू सर। So guys, any other question? ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक थे आज के। हमने थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ, जो लोग जिन्होंने हमें थोड़ा बाद में ज्वाइन किया। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट टॉपिक। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स, कस्टमर फोकस, characteristics of world class organizations, internal analysis, definition,
की इंटरनल एनालिसिस एंड व्हाट इज इंटरनल एनालिसिस। ये तमाम चीजें हमने आज पढ़ी और हमने डिस्कस की। अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक था।